Good afternoon, everybody. Hope you are doing fine. And so you can see in the screen that I have bought for you a set 4 of class 10 CBSE term 1 question paper. And as you know, for class 10 students that their boards are going on and even class 12 boards are going on. So today we have the science paper of class 10. So without wasting any further time, let us just jump into the solutions of this paper. Alright, and as you can see that you know the general instructions, you can read them here. There are totally 60 questions in a 16-page question paper, okay? And from this you can get an idea that you have internal choices also, because the total tally of marks was 40. So you get an I correct myself. You have to attempt 50 questions out of those 20 questions. Of those 60 questions, you are given 90 minutes, and there were total of 40 marks. So now let's begin the solution. So first question, as you can read out here, is let's read the first question. What does it say? A student, now see here, a student took a solution of sodium sulfate, okay, sodium sulfate, and in a test tube, he took a sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride. और उसने क्या किया, उसने उसमें बेरियम क्लोराइड मिला दिया, ठीक है। अब जैसे उसने बेरियम क्लोराइड मिलाया तो फिर अब हमें क्या मिलेगा? What do we get? So first, let me write down the reaction. We have Na2SO4, okay, plus BaCl2. Got it? Na2SO4 plus BaCl2. I am shifting it a bit towards the left so that you can see the reaction clearly. So the question is, what do we get when we mix these two? Okay. As you all know, when valency of Ba is plus 2, Na is plus 1, SO4 is 2 minus, and Cl is minus 1. So when we do the reaction, Na will replace Ba and Ba will come in place of Na. So the reaction that we get is, the product that we get is BaSO4 plus what else? NaCl. You can do the balancing, but that was not necessary in the question. So we have to look at the product. The main product we get here is BaSO4. Okay, so now let's check BaSO4 are there in which options. As you can see here, it's there in option D and in option C also. So now it is asking the color. This is the main part. So you have two options of the same formula, but now you have to look at the color also. So what is the color? BaSO4 cannot be in pink color, because we have studied it is always white in color. BaSO4 is white in color. So option C is correct. So first question's answer was C, white color, and the product we get is BaSO4. तो आगे बढ़ते हम लोग, further moving on. Next question. Which of the following oxides is soluble in water to form alkalis? अब हमें ऑक्साइड्स बताने हैं जो कि पानी में मिलते हैं, तो हमें अल्कलीज मिलती है। अब देखो अल्कलीज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अल्कली होता क्या है? मेटल। तो सबसे पहले इन चारों ऑक्साइड से मेटल ढूंढो कहाँ कहाँ है। देखो सोडियम, Na सोडियम होता है, यहाँ पे एक मेटल मिला मुझे। ये S क्या होता है? सल्फर। सल्फर तो मेटल है नहीं, नॉन मेटल है, तो इसको छोड़ दो। अब बचता है K2। K2 क्या होता है? पोटेशियम। तो यहाँ भी मुझे एक मेटल मिल गया, ठीक है। अब NO2 में मतलब नाइट्रोजन मेरे पास, नाइट्रोजन तो मेटल होता है नहीं, ओके। सो नाउ वी see over here, oh sorry for this,
So now when we see out here, what do we get? We have Na2O. Na2O यानी कि जो सोडियम है और दूसरा जो हमारे पास है पोटेशियम, दोनों ही एल्कली मेटल्स होते हैं, तो हमें दोनों से एल्कली मिलेंगी। तो ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड दोनों इसका सही होगा। देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड इसके दोनों ही सही होंगे। तो ऑप्शन में देखो क्या है, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड है, तो बिना सोचे समझे जब हमें ये दिख गया तो आगे क्यों बढ़ना, तो इस पे टिक कर दो। तो सेकंड का ऑप्शन होगा ए। अब थर्ड पे बढ़ते हैं। चलो जरा देखो ये डायग्राम क्या है। ये ना बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है क्लास 10th में और बहुत आसान भी है। जरा इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका मैं सॉल्यूशन है यहाँ पे करता हूँ। जरा देखो इसे, है क्या यहाँ पे हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि H2SO4 बिल्कुल, और प्लस में इसमें क्या है? Zn, जिंक। जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को मिलाते तो क्या बनता है? जरा सोचो। सबसे पहले तो आप बोलोगे जी हाँ कि जिंक सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा साथ में? H2 रिलीज भी तो होगा, या रिलीज भी तो होगा भाई। जब ये रिलीज हो गया तो अब देखो ऑप्शन में, देखो जरा हमारे पास क्या क्या है। तो अब हमें ढूंढना क्या है? गैस क्या बन रहा है, कौन सा गैस बन रहा है, हमें जरा ये ढूंढना है। हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है कि कौन सा गैस बन रहा है। कौन सा गैस बन रहा है? हाइड्रोजन बन रहा है। तो हाइड्रोजन तो सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो फिर हमें अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें भी दे रखी कि कार्बन डाइऑक्साइड, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी। ऑक्सीजन जो कि बहुत ब्राइटली बर्न करेगा कैंडल को, सल्फर जो कि सफोकेटिंग स्मेल देगा, हाइड्रोजन जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। अब थोड़ा सोचो, ये सब पढ़ने की जरूरत थी कि ये वाली पार्ट की? मेरे ख्याल से हमें ये वाली पार्ट पढ़ने की ना जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे गैस की ही अलग अलग ऑप्शंस हैं तो हमें उधर जाना ही क्यों? पहले गैस पे देख लो। अब देखो हाइड्रोजन तो बस एक में है, तो बस इस पे टिक कर दो। हाँ, वो अलग बात होता कि अगर यहाँ पे वो हाइड्रोजन दो ऑप्शन में देते और बोलते कि दोनों के साथ अलग अलग रिएक्शन हो रहा है, तब हमें फिर पॉपिंग साउंड पे आना होता, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ पॉपिंग साउंड के साथ ही निकलेगा इसमें। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का सही क्वेश्चन 3 का सही ऑप्शन हो गया आंसर डी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये आ गया बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तो बहुत आसान है, बच्चा भी कर लेगा। जरा देखो इसे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जब सोडियम है हमारे पास, जब सोडियम को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? पानी के साथ, तो क्या मिलता है हमें? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी। तो जरा लिख दो इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात है क्या? लिख देते हैं। देखो इक्वेशन क्या बनेगा? Na प्लस H2O। क्या मिलेगा हमें बताओ? NaOH प्लस H2। अब बस बचा क्या? बैलेंस करो। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, लेकिन देखो प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 2 और 1 3। सो व्हाट डू वी डू हियर इज वी फर्स्ट बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। Let's do one thing. I'll put 2 over here. Okay. I'm using a hit and trial method. I'll put 2 over here. So how many hydrogen do I get? I get 4. But अब इधर देखो तो इधर तो सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे भी एक 2 डाल दो। जैसे ही मैंने 2 डाला तो क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन हो गए पूरे। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन पूरे हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है। तो बस एक और काम क्या करना है, लास्ट में हमें सोडियम के आगे 2 लगा दो, तो हमारा रिएक्शन बन जाएगा 2Na प्लस 2H2O प्लस 2NaOH gives 2NaOH प्लस H2। अब देखो ये किस में है? Na यहाँ पे तो 2 मतलब इसे तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2Na नहीं है। अब इसे देखो 2Na प्लस 2H2O क्या देता है हमें? 2NaOH प्लस H2। तो ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका जो है सही है। ठीक है, आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा देखो इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इन सब में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो ऑरेंज में बताओ क्या? तो ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, तो ये ऑक्सैलिक एसिड नहीं होगा। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। सावर
सावर मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड, हाँ लैक्टिक एसिड होता है, ये सही है। टैमरिंड में एसिटिक एसिड नहीं होता, टैमरिंड में एसिटिक एसिड नहीं होता, एसिटिक एसिड तो विनेगर में होता है ना, टैमरिंड में एसिटिक एसिड थोड़ी होता है। हाँ एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, हाँ एंड स्टिंग में तो मिथेनोइक एसिड, ये सही है। यानी कि सेकंड और थर्ड ये दोनों सही है। तो देखो इसमें सेकंड और थर्ड किसमें सही है, ऑप्शन सी, तो ये दिस इज द राइट आंसर। अब आगे मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हाट डू वी गेट हियर, ओके they are asking the type of reaction, interesting. So let's see what type of reaction it is. C6H12O6. So what do we have over here is C6H12O6. Okay, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O. See, बहुत आसान है, हमने पढ़ा होगा टेंथ में आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि जब कोई भी कार्बन का कंपाउंड है उसके साथ अगर हम लोग O2 डाल देते हैं तो क्या हो जाता है बताओ। कार्बन के कंपाउंड में जब O2 पड़ जाए तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ वो बर्न हो रहा है, और जब बर्न होके जब CO2 बन गया तो पूरा प्रॉपर कंफर्म ही हो गया कि ये तो गैस बन गया, यानी कि यहाँ पे जो है बर्निंग हो रही है। तो बर्निंग में क्या होता है, हीट, बर्निंग में क्या होता है, जो हीट होती है वो हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज। जब हीट रिलीज होगी तो कौन सी हो गई है, एक्सोथर्मिक, ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी है। ओके आगे मूविंग फॉरवर्ड, Which of the following statements about the reaction given below are correct? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ठीक है, मतलब देखो हमारे पास क्या है, MnO2 यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड है, जिसे हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला क्या, मैंगनीज क्लोराइड, साथ साथ पानी और क्लोरीन। अब देखो इसमें से, अब देखो HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2, क्या HCl Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो HCl मतलब H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Cl पे माइनस है। अब यहाँ देखो Cl2 पे तो जीरो हो गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइज तो जरूर हो रहा है, माइनस से प्लस में आ रहा है ना, माइनस से जीरो आ रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है इसमें। अब दूसरा देखो, MnO2 is reduced to MnCl2, जरा इस पे बात करते हैं हम लोग। MnO2 में क्या है, O2 पे कितना चार्ज है, O2 यानी कि 2 माइनस और 2 इंटू 2 माइनस, क्योंकि 2 O2 है ना, तो यानी कि 4 माइनस, यानी कि Mn जो है वो 4 माइनस का ऑपोजिट मतलब 4 प्लस है। MnO2 में Mn का जो है वो 4 प्लस है, लेकिन जब Cl2 पे आ गया वो Mn, जब वो Cl2 पे आ गया तो क्या हो जाएगा, Cl यानी कि 1 माइनस, अब 2 से तो 2 इंटू 1 माइनस यानी कि 2 माइनस हो गया, और Mn हो जाएगा 2 प्लस, यानी कि Mn जो है वो रेड्यूस तो कर रहा है, जरूर Mn रेड्यूस भी कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। MnCl2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि MnCl2 तो क्या हो रहा है, रेड्यूस हो गया ना, MnCl2 तो रेड्यूस कर दिया, तो रेड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो बिल्कुल गलत हो गया। HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी गलत है, क्योंकि HCl ही तो है जो MnO2 को रेड्यूस कर रहा है। तो इसमें से सही कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 7th का C, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि सिर्फ पहले दो स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, बाकी ये सारे गलत है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Let's see question number 6. What is it saying? Select the following select from the statement which is true for bases. अब bases के लिए कौन सा सही है हमें इसमें से देखना है। Bases are bitter and turn blue litmus red. Bases blue litmus को red में बदलते हैं क्या? मैंने तो सुना था कि red को blue में बदलते हैं, है ना? तो bases जो है वो red से blue में करते हैं, यानी कि ये तो गलत हो गया।
पहला ऑप्शन हो गया गलत, ये हो गया गलत। दूसरा देखो, बेसिस हैव पीएच लेस देन 7, ना भाई ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेसिस का पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होता है। बेसिस का पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होता है। एसिड्स का पीएच बिल्कुल लेस देन 7 होता है, लेकिन बेसिस का पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होता है। तो जो बेस होगा ये भी गलत हो गया उस सेकंड ऑप्शन में। अब सी में देखते हैं, बेसिस और सार एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये गलत है, क्योंकि मैं आपको समझा दूं गलत क्यों है। जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। आप बोलोगे रेड तो ब्लू में बदल रहा है, रेड तो ब्लू में बिल्कुल बदल रहा है, लेकिन बेस जो होते हैं ना वो सार नहीं होते, वो बिटर होते हैं। बेस जो होता है वो कभी सार नहीं होता, बेस जो यहाँ पे बिटर होता है, तो इसलिए ये गलत है। तो बचा क्या, ऑप्शन डी, यानी कि यही सही है। बेस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथलीन इज एडेड टू देम, ये बिल्कुल सही है। बेस पिंक हो जाता है जब फिनोल्फथलीन डाला जाता है, यानी कि 8th का ऑप्शन डी जो था वो सही था। अब जरा आ जाओ ये पेरेंट ये सॉल्ट और इस पे आ जाते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड पेरेंट एसिड। देखो सोडियम क्लोराइड बनता है कैसे, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, हमने पढ़ा भी होगा। जरा देखते हैं इसे। सोडियम क्लोराइड बनता है, देखते हैं इसके बारे में हम लोग। ये देखो NaOH प्लस HCl क्या देता है हमें, NaCl प्लस H2O, यानी कि ये तो सही है। लेकिन देखो नेचर ऑफ सॉल्ट बेसिक नहीं होता है। NaCl जो होता है ना वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्योंकि देखो सोडियम एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग मिल जाते हैं तो न्यूट्रल बन जाते हैं, इसलिए बेसिक के कारण ये जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। अब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट देखो ये इसका, ये देखो ये सारा चीज तो इसका सही है, H2CO3 और NaOH ये बिल्कुल सही है, कैसे पता। लेकिन ये जो है ना ये गलत कर देगा इसे, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक होता है। क्योंकि देखो जो H2CO3 है ना वो एक वीक बेस होता है, H2CO3 एक वीक बेस होता है, सॉरी वीक एसिड, बेस नहीं एसिड। H2CO3 एक वीक एसिड होता है, ये वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब ये मिलते हैं तो यहाँ पे बेसिक नेचर होता है इसका। अब बात करते हैं सोडियम सल्फेट की। अब सोडियम सल्फेट ये वाला इसका बिल्कुल सही है, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे ये एसिडिक नहीं रहेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये ना न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों न्यूट्रल होगा वो फिर से आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि देखो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसलिए ये भी जो ऑप्शन है ये गलत है। तो बचा क्या, ऑप्शन डी सोडियम एसीटेट, ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि देखो CH3COH जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड या फिर विनेगर, जो कि विनेगर में पाया जाता है, ये बहुत ही वीक एसिड होता है और NaOH उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब वीक और स्ट्रॉन्ग मिलेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो डोमिनेट करेगा, तो ये बेसिक हो गया, तो ये सही है बिल्कुल। तो 9th का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब 10 में देखो क्या है, it is important to balance the chemical equations to satisfy the law of conservation of mass. To which of the following statement of the law is incorrect? ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसमें से हमें बताना है कौन सा लॉ इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सही, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना हमारे पास रिएक्टेंट में होगा उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट में मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बी, the number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction. ये बात भी बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा से सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा, मास इज कंजर्व। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स बदल गए तो मास तो बदल गया ना। तो अगर एटम्स सेम रहेंगे तभी तो मास सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। The chemical composition of reactants is the same before and after the reaction. ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है,
केमिकल कॉम्पोजिशन, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज को रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमने ये देखो NaOH है और HCl है, जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो कुछ अलग ही चीज बन गया ना। ये ना बेस रहा ना एसिड रहा, ये तो सॉल्ट बन गया। तो ये मेरे ख्याल से गलत होगा। एक बार डीवी पढ़े थे, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है ये गलत है इसके बारे में। तो यानी कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तीसरा ऑप्शन सी, ये इनकरेक्ट है, यानी कि ये वाला आंसर है इसका। अब ये देखो बायो का भी आ गया। अब ये देखो क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in connection with functions of the blood vessels marked A and B in the diagram of a human heart as shown. अब देखो क्या कहता है, ब्लड A it carries carbon dioxide rich blood to the lungs, ठीक है। ब्लड B, ब्लड वेसल B क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। ब्लड वेसल B फिर से लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल ये क्या है? राइट आर्टरियम with thick muscular mass as it has to pump blood into this blood vessel. अब जरा देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट, ब्लड वेसल ए जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड करेगा लंग्स को, ठीक है। ब्लड ए में तो हाँ बिल्कुल ये सही होता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है, ये तो सही है। अब ब्लड भी ऑक्सीजन रिच करेगा, ये भी सही है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेड रिसीव्स ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल। अब जब ब्लड वेसल बी से वो ब्लड आएगा हार्ट से लंग में, सॉरी लंग से हार्ट में, जब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा हार्ट में तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम तो रिलैक्स करेगा ही ताकि वो उसे अब्सॉर्ब कर पाए, तो ये भी सही है। अब राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल्स। अब देखो ये ना गलत है, क्यों? क्योंकि जब उसे ब्लड वेसल ए से खून चाहिए तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड का उतना प्रेशर होता नहीं है, तो थिक वॉल्स होने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो ये गलत है। तो इसमें सही क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। In non-living organisms during respiration, which of the following products are not formed if oxygen is not available? ठीक है। अब इसमें से हमें बताना कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है जब ऑक्सीजन नहीं हो। तो हमने पहले क्या, अब देखो जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो क्या बनेगा, चलो जरा देखते हैं। लैक्टिक एसिड, मैं ऑप्शन सी से स्टार्ट करता हूँ। लैक्टिक एसिड तो बनता है भाई, लैक्टिक एसिड तो बनेगा, क्योंकि देखो वो क्या आपने पढ़ा है ना, मसल क्रैम्प में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करता है तो फिर वो मसल क्रैम्प पड़ते हैं, तो वो ये तो सही बना, लैक्टिक एसिड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये भी बनेगा जब ऑक्सीजन नहीं हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। और देखते हैं, नहीं एक मिनट जरा रुको। अगर पानी नहीं तो, अगर ऑक्सीजन नहीं तो CO2 कैसे बनेगा? जरा ये देखते हैं। अल्कोहल बनेगा, देखो ये दोनों लैक्टिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा किसी भी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन ना हो। तो C और D तो देखो ही मत, ऊपर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो अल्कोहल बन सकता है जब एनारोबिकली कोई रेस्पायर करे, लेकिन वाटर का बनने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो यानी कि जो है ये नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका ये सही है। बाकी सारे बनेंगे B, C और D, ये सारे बनेंगे जब ऑक्सीजन ना हो तो, लेकिन जो ए ऑप्शन है ना ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे पानी बन गया, पानी के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है ना। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, उनके रिलेशन में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या ये सही है क्या? जब हम लोग किसी भी चीज को यूज करते हैं, आपने पढ़ा डाइजेशन में भी क्या होता है, डाइजेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, जब हम लोग खाना खाते तो ब्रेक डाउन होता है ना, तभी तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जितने भी हो वो हमेशा ब्रेक डाउन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो सही है,
ब्रेक करना ही करना है। यानी कि ये जो ऑप्शन है ना, और सही है इन द सेंस कि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्रेक डाउन करेगा। अब देखो, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सफिशिएंट सिंपल डिफ्यूजन, अब सिंपल डिफ्यूजन से थोड़ी ना हमेशा गैसेस की वो रिक्वायरमेंट मिलेगी। अगर सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन होता तो फिर हमें मसल क्रैम्प्स क्यों होते? हमारे भी तो शरीर में पोर्स है जहाँ पे डिफ्यूजन होता है, लेकिन वहां पे हमें ऑक्सीजन नहीं ना मिलता, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरी नहीं हो पाती है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है, ये 1 मिनट जरा फिर से पढ़ते हैं इसे। सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस सफिशिएंट टू मीट द ओके। अरे यार क्या हो गया, ये देखो ये गलत है, पहला वाला गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि डिफ्यूजन से ही तो गैसेस मिलते हैं। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैं ये और ये मिक्सअप कर रहा था। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और ये तो बिल्कुल सही है, हर एक टिश्यू का अपना अपना फंक्शन होता है, ये सही है। एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग द फूड। जरा देखो तो इसे, क्या एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट। हाँ, जब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब फूड को टेक करता है तो उसका पूरा बॉडी एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में, जैसे हमें पढ़ना है ना अमीबा। अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडा होता है जो कि एक्सपैंड करके, मतलब अमीबा अगर कुछ ऐसा है सिंगल सेल है, तो जब उसे एक खाना मिल गया तो फिर वो उसे अटैक करेगा ना, यहाँ से वो एक्सटेंड करके, यहाँ से भी एक्सटेंड करके, फिर वो अपने बॉडी को उसे अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो ये तो सही है, लेकिन देखो वहीं अगर बात करिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में, ये तो हमारे पास होती है, किसमें होती है ये हमारे पास, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में जो है ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज तो होता ही नहीं, एक ही सेल होता है जो सारा काम करता है। तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा सही? फर्स्ट तो गलत हो गया, क्योंकि फूड तो वैसे भी ब्रेक होगा ही होगा, ये गलत हो गया। सेकेंड है कि सिंपल डिफ्यूजन से इनका गैस, ये देखो सिंगल सेल में तो सिंपल डिफ्यूजन से गैस एक्सचेंज होगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और फोर्थ तो सही है, तो सेकंड और फोर्थ जो है जिसमें वो सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। Which of the following is not removed as a waste product from the body of a plant? प्लांट के बॉडी से क्या नहीं निकलता है, जरा देखो तो। रेजिन एंड डम्प्स निकलते हैं, तभी तो हमें रबड़ मिलता है, सूखे पत्ते गिरे मिलते हैं हमें, पानी भी निकलता है, ट्रांसपिरेशन। लेकिन क्या प्लांट से यूरिया निकलता है क्या? नहीं। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब जरा आ जाओ दूसरे 15th पे। Which of the following statements are correct in reference to the role of A? अब A क्या है? अच्छा ये है A, यानी कि ये पता है हमें क्या होता है, डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम के बारे में जरा पढ़ते हैं क्या क्या है। It helps to decrease the residual volume of air in lungs. ये कभी हेल्प, इसमें नहीं हेल्प करेगा, ये हेल्प करता है इंक्रीज करने में। तो ये ऑप्शन गलत है, हमेशा ये इंक्रीज करेगा लंग्स में। इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, हाँ ये सही है, ये फ्लैट कर, जब हम लोग सांस लेते हैं ये पूरा फ्लैट हो जाता है कि और हवा आ सके। और इट गेट्स रेज, ये तो गलत है, अगर जब वो फ्लैटन होगा तो वो ऊपर कैसे आएगा, ये तो गलत हो गया ना। फिर इसकी अगर इसके बात करते हैं तो ये गलत है, ये वाला सही है। इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, ये बिल्कुल सही, क्योंकि जितना लार्जर चेस्ट कैविटी बनेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, और डायफ्राम का काम ही क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन लेना। यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो। Which one of the following conditions is true for the tomato of a green leaf shown in the given figure? अब देखो ये हमारे पास एक लीफ का डायग्राम है जिसमें क्या है, टोमेटो है और गार्ड सेल्स है या नहीं।
तो देखो स्टोमेटा तो सही है, गार्ड सेल। अब देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में ज्यादा पानी बहता है, ये गलत है, क्योंकि पानी तो थोड़ी ना बहेगा गार्ड सेल में, वो बनता है इसलिए वो उसे गार्ड करे कि पानी ज्यादा ना बहे उसके अंदर। गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट, ना गैसियस एक्सचेंज स्मॉल अमाउंट में होता है, प्लांट्स है ना भाई। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स, हाँ पानी तो ज्यादा मात्रा में निकलता तभी तो ट्रांसपिरेशन, तो ये सही ऑप्शन है। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर इज कलेक्ट, ये भी गलत है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है इसका। अब अगला है 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज यूज। कॉनकेव मिरर किस में यूज होता है, सोलर कुकर में, रेयर व्यू मिरर में, सेफ्टी मिरर में, या फिर फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग में। देखते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग। अब देखो रेयर यानी कि जो गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं साइड मिरर्स, उसमें तो कन्वेक्स होता है, तो ये तो गलत हो गया। सेफ्टी मिरर में भी कन्वेक्स होता है, ताकि और इसमें भी कन्वेक्स, क्योंकि देखो जब भी बात आ जाए बड़े से छोटे करने की तो हमें समझना कन्वेक्स होता है, और जब बात आ जाए लाइट को कैप्चर करने की तो कनकेव। और सोलर कुकर में करना क्या है, हमें लाइट को कैप्चर ही तो करना है ताकि हमें हीट मिले, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। अब देखो क्या है, एक स्टूडेंट है, उसने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है ए बी को रखा है। कहां पे रखा है, 2F1 पे ए बी को रखा है उसने। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से जो वो सक्सेसफुल डायग्राम हो, कौन सा सही शो करेगा। ए बी को उसे कहां चाहिए, स्क्रीन पे चाहिए। तो अगर ए बी को उसे स्क्रीन पे चाहिए तो कौन सा इसमें से सही शो हो करेगा, बताओ मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हो कौन सा सही शो करेगा, उसे स्क्रीन पे चाहिए उसे। तो देखो कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में जब भी हम लोग 2F और F के बीच में कोई भी चीज रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे शो जाएगा, कहां पे, स्क्रीन पे शो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आ रही है अभी तक लाइक करो। और हमारे चैनल फिजिक्स पे बेसिकली बेस्ड है, तो अगर आपको फिजिक्स के कोई भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हो तो हमारे चैनल में आप देख सकते हो, तो बहुत सारे वीडियोस हैं, एक्सपेरिमेंट से लेके प्रैक्टिकल्स तक, और थ्योरी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हमारे सर जो है आप जानते हो सौरभ सर, उन्होंने किया है, तो आप उनकी वीडियोस देखो, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैथमेटिकल ट्रिक्स भी है इस चैनल पे, HC के सोल्यूशंस भी हैं, आप जरूर देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब देखो, द फॉलोइंग diagram shows the use of optical device to perform an experiment of light. As per the arrangement shown, the optical device is likely to be a। अब जरा देखो इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग हो रहा है फिर डाइवर्जिंग हो रहा है। जब देखो जरा यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, जब लाइट यहाँ से ऐसे आके ऐसे जा रही है, यहाँ से आके ऐसे जा रही है, तो क्या दूर जा रही है, दूर का यानी कि मतलब डाइवर्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जब कोई भी चीज डाइवर्ज होता है तो बताओ कौन सा लेंस होता है, डाइवर्ज होने यानी कि कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस सब कन्वर्जिंग होती है, एक लिमिट में कन्वर्जिंग होती है, लेकिन जो कनकेव लेंस है ना वो डाइवर्ज कर देगा। इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, जैसे यहां से लाइट आएगी यहाँ पे, यहां से दूर ऐसे दूर दूर भागेगा, यहां से ऐसे भागेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू medium A of refractive index 1.5, enters medium B of refractive index 1.33 and finally enters medium C of refractive index 2.42. This ray emerges out from C.
Then from the which of the following pair media the bending of light is least? किसमें सबसे कम बेंडिंग होगा लाइट का? तो देखो बेंडिंग जो होता है ना वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ, क्या कहते हैं इस पे, नेचर ऑफ ये मटेरियल पे। अगर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो ज्यादा बेंड करेगा और कम है तो कम बेंड करेगा। तो देखो जब एयर से हवा में आएगा, जब हवा से जो है जब ए में आएगा तो हवा का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, यानी कि जब हवा से आया ये तो यहाँ पे क्या था 1 था, ए में क्या हो गया 1.5, तो डिफरेंस कितना हो गया इसका 0.5 का, ठीक है। तो अब जब ए से बी में आया, ए का कितना था 1.5, बी का कितना था 1.33, तो डिफरेंस कितना हो गया 0. क्या कहते हैं 0.17 का डिफरेंस हो गया। अगला देखते हैं, जब ये बी से सी में गया, जब ये बी से सी में गया तो 1.33 से ये 2.42 में चला गया, तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया इसमें। और जब सी से ए में आया फिर डिफरेंस बढ़ गया, यानी कि कब सबसे कम डिफरेंस किसमें है, इसमें 0.17, 0.5 से भी कम है 0.17 में। तो किसमें सबसे कम हो गया ये ए बी में, तो ये ऑप्शन का सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जरा देखते हैं इसके बारे में। जब लाइट स्कैटर होती है तो अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स बड़े होंगे तो लाइट की कलर जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं रेड, क्या कहते हैं रेडिश ब्लूइश, इस मतलब इस टाइप में होंगी। तो ये लाइट ये डिपेंड बिल्कुल करेगी इस पे तब, क्योंकि वही डिपेंड कर, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट करेगी तो लाइट कौन से कलर की होगी। जैसे देखो क्लाउड्स हैं, अगर क्लाउड जो है वो सन की रेस को रोकते हैं तब देखो कुछ अलग ही कलर हमें यहाँ पे मिलता है। कभी जैसे सुबह सुबह देखो तो रेड मिलेगा, अब ज्यादा घना मौसम में थोड़ा सा ब्लूइश टाइप सा मिलेगा हमें, स्काई ज्यादातर ब्लूइश होगा, क्योंकि वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा। तो ये तो डिपेंड तो करेगा, ये सही ऑप्शन है, मतलब ये तो सही है, हमें जो गलत है वो ढूंढना है। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड इन एटमॉस्फेयर। हाँ बिल्कुल, रेड लाइट सबसे कम स्कैटर क्यों होता है, क्योंकि जिसकी ज्यादा वेवलेंथ उतना कम स्कैटरिंग, तो ये सही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन एयर। देखो जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना तो स्पीड हमेशा सेम ही होना चाहिए, अगर अलग अलग स्पीड होगी तो स्कैटरिंग तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये जो है ना ये ऑप्शन गलत है। और डी की बात करते थे, फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है, हमें गलत वाला ढूंढना था, इसमें सी जो है वो गलत है, यानी कि आंसर इसका सी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़े और समझे क्या है। हमारे पास एक एक मिरर का डायग्राम है, जाहिर से हम देख रहे हैं वो कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में क्या कहा है इसने कि हमें साइन बताना है किसका। सबसे पहले देखो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज का, ओके। तो देखो ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस और पोल के बीच में है ना। जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या होता है, जरा सोचो। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आता है तो क्या बनता है, जरा सोचो। यहां पे बनता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज तो ऊपर बनेगा ना। वर्चुअल इमेज मतलब यहां से देखो, अगर ये रिफ्रैक्ट करेगा, एक यहां से जाएगा तो कुछ ऐसे वापस रिट्रेस करेगा, और अगर दूसरा गया, दूसरा यहां से जाएगा तो ये भी वापस इसे ऐसे रिट्रेस करके ये वापस यहां से आएगा। तो अगर ये जो बनेगा ये डायग्राम, ये तो हो गया ए डैश और बी डैश, यानी कि ये देखो वर्चुअल है, यानी कि पॉजिटिव है, और वैल्यू मोर देन 1 क्योंकि बड़ा बना है। ये हो गया इसका आंसर।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 23, a ray of light is incident as shown. If A, B and C are three different transparent media, then which among the following options is true for the given diagram? Okay. हमें यहाँ पे ना सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो नॉर्मल है सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 23 नॉर्मल है ये। तो यहाँ पे देखो, ये समझ लो ये हवा है, मान के चलते ये हवा है। तो यहाँ पे देखो, इसे थोड़ा सा मैं ना थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, यहाँ बना दिया इसे थोड़ा सा, सॉरी वो लाइन सीधी नहीं बन रही, थोड़ा ऐसे बना दिया। अब देखो यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कम है, यानी कि जो 2 जो है ना, ये 2, ये जो 2 जो एंगल है, एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1, क्योंकि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। अब एंगल 3 और एंगल 2, देखो ये और ये एंगल, अब देखो जब हमने पैरेलल लाइन को थोड़ा, जो पैरेलल लाइन पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये बराबर होंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये है कि कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन ऐसे टिक कर दो, वैसे ही सही हो गया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, in the diagram given below, x and y are the end colors of the spectrum of white light. The color y represents the, कलर y कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, जरा सोचो। जब देखो, जब हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है ना, हमें पता है वो रेनबो होता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बच्चे जानते हैं ये। तो देखो जब विबग्योर बनता है ना, तो जो सबसे ऊपर होता है ना, ये होता है रेड, सॉरी ये होता है ब्लू, ये होता है ब्लू, सबसे ऊपर बनता है ब्लू, सबसे ऊपर बनता है ब्लू, ठीक है। और जो नीचे होता है वो बनता है रेड, ठीक है। सबसे ऊपर ब्लू और सबसे नीचे रेड। तो देखो y, यानी कि y कौन सा है, रेड कलर। तो रेड कलर कहां यूज होता है, डेंजर सिग्नल में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो गया, सिंपल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, यानी कि सेक्शन बी पे। अब जरा देखो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओहो, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट भी मिल रहा है और डिकम्पोज भी हो रहा है, ठीक है। थोड़ा जरा देखते हैं इसे। तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन जब बात आ जाए ना, सबसे पहले ढूंढो कार्बन कहाँ कहाँ है। इसमें कार्बन है क्या, नहीं है। इसमें है क्या कार्बन, नहीं है। इसमें कार्बन नहीं है। तो देखो यहाँ पे कार्बन मुझे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखो, अब मुझे कार्बन तो मिल गया, लेकिन क्या मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है प्रोडक्ट में। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सबसे पहले कार्बन ढूंढो, कार्बन मिल गया मुझे। अब CO2 भी बन रहा है, तो यही होगा आंसर इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं हम लोग। 26 में देखो क्या है कि pH हमारे पास गिवन है। अब देखो सबसे पहली बात हम इसमें डिस्कस करते हैं कि जितना ज्यादा pH होगा ना, जितना ज्यादा pH, एक मिनट देना, जितना ज्यादा pH होगा उतना ही ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है। जितना ज्यादा pH, सॉरी जितना ज्यादा pH होगा, एक मिनट सोचने दो मुझे।
जितना ज्यादा पीएच उतना कम H प्लस। अब रीजन समझना क्यों। जो जितना पीएच जितना इंक्रीज करेगा वो उतना कम एसिडिक हो जाएगा, और जो जितना कम एसिडिक होगा वो उतना ही कम H प्लस रिलीज करेगा। यानी कि अगर एसिडिक जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा। तो अब देखो पीएच सबसे कम किस में है, ये देखो 1.2, ये सबसे कम पीएच, यानी कि 2 जो है वो सबसे ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा। 1.2 के बाद 2.2 यानी कि फिर 1 हो जाएगा, अब फिर 3 यानी कि 4, अब फिर लास्ट में क्या आ गया 3, यानी कि ये ऑर्डर 2, 1, 4, 3, यानी कि ये आंसर सही है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उसने किस में डाल दिया, क्या कहते हैं, इसने डाल दिया इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या मिलेगा, हमें क्या निकालना है, P निकालना है, Q निकालना है, और चेंज क्या होगा। ठीक है, जरा देखते हैं इस पे P क्या होगा। सबसे पहले जैसे हमें P पता चलेगा हमें Q और चेंज अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो अगर Q को मैं K2CO3 डाल दूं, K2CO3 प्लस HCl क्या बनेगा, KCl प्लस H2CO3, यानी कि KCl प्लस H2CO3 ये बनेगा, ये 2KCl और ये यहाँ पे 2। अब H2CO3 को जब हम लोग डालेंगे किसमें, प्लस कर दो इसमें CaOH2, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, CaO बनेगा और साथ में H2O बनेगा। तो CO2 बना, अब CO2 क्या करेगा, लाइम वाटर को क्या टर्न कर देगा, ये मिल्की टर्न कर देगा। ठीक है, तो क्या कहाँ है ये K2CO3 बन रहा है, तो ये हो जाएगा इसका। क्योंकि अगर हम लोग KHCO3 डालेंगे ना, अगर हम लोग KHCO3 डालेंगे तो फिर वो CO2 नहीं रिलीज करेगा, और अगर CO2 रिलीज नहीं करेगा तो मिल्की बनेगा ही नहीं। तो सिर्फ K2CO3 ही है जो CO2 रिलीज करेगा और मिल्की भी बनाएगा। तो ये सही हो गया। अब ये देखो, इस स्ट्रक्चर पे आ गया, कौन सा इसमें सही है। CaCl2 का सबसे सही कौन सा डिपिक्ट कर रहा है ना, CaCl2 को सबसे बढ़िया कौन सा डिपिक्ट करता है, जरा देखें। ये देखो, चार्ज तो होगा नहीं, क्योंकि जब यहां पे अंदर इन्होंने क्रॉस दे दिया तो यहां पे चार्ज क्यों देना, तो ये तो गलत हो गया। CaCl देखो, क्लोरीन पे कभी 2 माइनस नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। अब ये देखो Ca2 प्लस, और यहां पे ये बनाने का कोई सेंस नहीं, जब हम लोग यहाँ पे 2 प्लस दे रहे हैं तो ये बनेगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा बचा है ये हमारे पास, ये वाला। कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इन्होंने कोई चार्ज दिया है, अंदर इन्होंने ये वाला भी दे दिया है, और यहाँ पे जब इन्होंने 2 प्लस दिया है तो इन्होंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो ये आंसर इसका सही है। अब कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, जरा देखें। अब डिस्प्लेसमेंट पता है ना आपको क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट देखो, a strong metal displaces a weaker metal। एक स्ट्रॉन्ग मेटल है जो एक वीक मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है या नहीं, बिल्कुल। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट किस किस में होगा। पहला देखो, अगर हम लोग NaCl को एक कॉपर मेटल में डालेंगे, NaCl और कॉपर मेटल, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि क्या होगा,
NaCl और कॉपर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? NaCl और कॉपर में कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है ज्यादा? NaCl ना, मतलब सोडियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा। AgNO3 और कॉपर, AgNO3 वीक होता है कॉपर से, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। Al2SO4 और मैग्नीशियम मेटल, तो यहां पे क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है ना, ये Al2SO4 को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, तो ये भी कर सकता है। एक मिनट, हाँ ये कर देगा। ये कॉपर मेटल है ना, सॉरी यहाँ पे हम इसमें देखो डिस्प्लेस क्या करें, इसमें फिर से आपके डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इसे दोबारा डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखो जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे हमें देखना है कौन सा, यानी कि ये जो मेटल है ना, इससे रिलेशन में देखना है कि क्या ये चारों मेटल, क्या ये जो चार है, क्या ये अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स को डिस्प्लेस कर पाएंगे क्या इसे? तो कॉपर और Na, कॉपर जो होता है वो Na से वीकर होता है, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। अब कॉपर और Ag, तो Cu जो होता है वो Ag से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, तो सेकंड डिस्प्लेस कर देगा, फर्स्ट नहीं करेगा। Al2SO4 मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता। तो मैग्नीशियम देखो, अब हम जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से पहले आता है, और वो जाहिर सी बात है उससे स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो ये कर देगा। आयरन और जिंक, आयरन जो होता है ना Fe, वो जिंक से कमजोर होता है, क्योंकि जिंक ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए ये भी नहीं करेगा, तो सिर्फ सेकंड और थर्ड करेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 पे अब हम लोग पढ़ते हैं। Which of the following salts do not have the water of crystallization? कौन से इन सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता? यानी कि इसमें मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसा, मतलब जैसे हमें याद है हम लोग पढ़ते हैं ये CuSO4.5H2O, यानी कि ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसमें नहीं होगा जरा बात करते हैं इसमें, ठीक है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CuSO4 बोल रहा हूं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, जिप्सम जो होता है, जिप्सम जब हार्डन हो जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो वो होता ही है पानी, याद है, .2H2O, ये होता है फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। CaSO4.2H2O, ये होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में, इसमें पानी होता है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें पानी में क्या नहीं है, इसमें डू नॉट हैव वाटर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है क्लोरीन होता है, इसमें पानी नहीं होता है, तो ये इसमें पानी नहीं है। वॉशिंग सोडा में भी पानी होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। बेकिंग सोडा में पानी नहीं होता है, तो ये भी होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ यानी कि थर्ड का डी ऑप्शन जो है वो सही है। अब जरा इसकी बात करते हैं, असर्शन और रीजनिंग में हमें वहां पे आपको OMR शीट में ऑप्शन ABCD मिला हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पेपर में ABCD नहीं लिखा, लेकिन ऑप्शन OMR शीट में मिला हुआ ABCD लिखा हुआ, तो हमें बस टिक करना है। देखो कंडीशन क्या क्या इन्होंने दी हुई है हमारे पास इसमें, कि अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए टिक करोगे आप। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप बी करोगे। अगर ए असर्शन सही है और आर रीजन फॉल्स है तो फिर सी करोगे। अगर असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू है तो फिर आप डी सिलेक्ट करोगे। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है कि बनाते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको किस में इसने यूज किया है, क्या कहते हैं, एंटासिड में। बिल्कुल ये होता है यूज एंटासिड में क्योंकि ये बेस होता है। एंटासिड यानी कि जो बेस हो गया, एंटी एसिड्स एंटासिड्स। NaHCO3
इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये भी सही है क्योंकि NaCl3 होता है क्या, देखो यहाँ पे क्या हो गया, वीक बेस, सॉरी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बेसिक सॉल्ट होता है और कोरोसिव नहीं होता है ये। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो है ना ये एंटासिड में क्यों यूज होता है ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि है तो दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब जरा 32 की बात करते हैं। बर्निंग नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाँ, नेचुरल गैस जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें हीट रिक्वायर होती है बर्न करने के लिए। मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये गलत है। मीथेन गैस कभी कंबाइन नहीं करेगा। तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए सही है, आर फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन सी। 33 को देखते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट फ्रॉम इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, 33 में क्या क्या रहा है कि नाइट्रोजन एक एसेंशियल ग्रोथ, एक एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट हम जानते हैं कहां से मिलता है इसे, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट से बिल्कुल मिलता है। राइजोबियम हमने पढ़ा है, उसे तोड़ देता है, फिर फर्टिलाइजर यूज कर लो तो वो भी काम कर देता है, ये सही है बिल्कुल। द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट्स, ये बिल्कुल सही है। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन क्या ये इसे एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता कि इसे नाइट्रोजन जरूरी क्यों है। क्यों? जैसे ये बताने कि कहां पे मिलता है, क्यों जरूरी है, वो तो नहीं बता रहा है। तो यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब 34 की ओर बढ़ते हैं। थर्टी फोर देखो क्या है। सन अपीयर्स टू बी रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। हाँ भाई होता है, ये तो ट्रू हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेस देन द डिस्टेंस लेसर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर्ड टू नून। ये जरा सोचने की बात है। क्या जो डिस्टेंस होता है सनलाइट, देखो जब हमारे पास होता है ऐसे, अर्थ एक स्फीयर है, सन का डिस्टेंस यहां है, मॉर्निंग में मान लो यहां होता है और आफ्टरनून आता है तो यहां आ जाता है सन, यहां से ये लाइट देगा। अब देखो जरा, जब यहां पे आ गया तो और यहां से लाइट, डिस्टेंस तो सेम रह गया ना। अगर देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गया, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अर्थ पिचक जाएगा और यहाँ पे अर्थ बढ़ जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। बिल्कुल, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। इसका मेन यही तो काम होता है। अब वो देखो डाइजेशन में हेल्प करता है, हमें गिवन है। अब कैसे हेल्प करता है? एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करके, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ना, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। A student was asked to write a stepwise procedure to demonstrate the carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following steps. The wrongly worded step is, wrongly कौन सा दिया गया है? ठीक है, तो जैसा कि मैं कह रहा था, हमें इसमें क्या देखना है कि रॉन्गली वर्डेड कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में रॉन्ग कौन सा है? देखो पहला है ग्रीन प्लांट, KOH, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर इन डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 days, ये सही है। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में डार्क रूम में रखते हैं, तो ये सही है।
बॉटम एंड बेल जार्स आर सील टू मेक देम एयर टाइट। हाँ, उन्हें सील किया जाता है ताकि उसमें हवा की आवाजाही ना हो सके, हवा उसके अंदर बाहर ना हो सके। बोथ पॉटेड प्लांट्स आर इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। हाँ, ये गलत है, हमें उस डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते। अ लीफ फ्रॉम द प्लांट इज टेकन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन सी जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स of two different animals, a fish and a human being are shown. Observe A and B and select the characteristics which holds true for both of them. अब देखो, एक फिश में क्या है? गिल्स, जो कि यहां पे है, और ह्यूमंस का ये कौन सा? एवियोली, जो कि लंग्स में होता है या नहीं? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। अब देखो, क्या दोनों इंटरनल होते हैं क्या? चलो, ह्यूमंस में तो एवियोली लंग्स के अंदर होते हैं, इंटरनल होते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन गिल्स तो फिश के बाहर ही होते हैं। यहाँ पे दिख सकते हैं ना गिल्स फिश के, जो जब आप लोग फिश को देखोगे तो उसके गर्दन, वो उसके आंख के जस्ट पीछे उसके गिल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेसेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। दोनों के पास थिन और मॉइस्ट सरफेस होता है क्या गैसियस एक्सचेंज के लिए? सोचो। हाँ भाई, होता है। फिश का भी स्किन मॉइस्ट होता है, और ह्यूमन का तो वैसे भी लंग्स है, तो इंटरनल पार्ट तो वैसे भी सॉफ्ट और मॉइस्ट ही होगा। ये सही है। बोथ आर पुअरली सप्लाइड विद, नहीं, ये गलत है। दोनों में बहुत अच्छी ब्लड वेसल्स की सप्लाई, ताकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैल सके अच्छे से। इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, ये गलत है। यानी कि 3 तो गलत है, यानी कि सही कौन सा है? 37 का ऑप्शन बी जो है, ये सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। Observe the diagram of an activity shown below. What does it help to conclude? एक बच्चे ने लाइम वाटर में फूंक मारी है, तो क्या होगा? आप सभी जानते हो, मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों होगा? ये जानते हो, तो ये तो जानते ही हो आप, ये मिल्की हो जाएगा। अब मिल्की क्यों होगा? क्योंकि इसमें CO2 प्रेजेंट हो जाएगा। अब जब CO2 प्रेजेंट तो क्या होगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर। जरा देखो इसके बारे में। क्या जब हम लोग सांस लेते हैं तो CO2 ज्यादा होता है, फिर जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 ज्यादा होता है? जब सांस छोड़ते हैं, तो ये तो गलत हो गया। फर्मेंटेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सहेल्ड एयर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। If a lens can converge the sun rays from a point at 20 centimeter, then away from its optical center, power of lens। अब देखो, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, तो पावर तो इसका क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस है। लेंस है कन्वेक्स, यानी कन्वेक्स का तो पॉजिटिव ही होता है, फोकल। और कितना? 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 1/5 कितना हो जाएगा? 1/20 मीटर। ये हो गया पावर। 1/20 मीटर यानी कि 100/20, ये मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर का इनवर्स, तो 100/20 हो गया, यानी कि कितना हो गया? ये और ये कट गया, प्लस 5D। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आर हमें पता 30 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। देखो, वर्चुअल इमेज पाने के लिए ना हमें उसे फोकस और किसके बीच डालना पड़ता है, क्या कहते हैं, फोकस और पोल के बीच में।
अब देखो जब r हमारे पास क्या है, जब r जो है वो हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अगर हमें वर्चुअल चाहिए तो ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर से कम में रखोगे, है ना, यानी कि 15 सेंटीमीटर कम में रखोगे, यानी कि कौन सा हो गया बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर कंपेयर्ड टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ टाइगर। अब ऐसा क्यों होता है? जो डियर का स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो टाइगर के स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा क्यों होता है? अब देखो, इसका मेन रीजन होता है टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड। क्यों? अब देखो, डियर क्या खाता है? घास। घास में वो पता है सेल्यूलोज ज्यादा होता है, तो सेल्यूलोज को ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होता है। अब शेर क्या खाता है? दूसरे जानवर, जैसे वो शेर ने खा लिया डियर को, तो डियर का जो होता है ना, उसका जो फ्लैश होता है, फ्लैश में कम सेल्यूलोज होता है। फ्लैश में तो सेल्यूलोज होता ही नहीं, ह्यूमन बींग्स में सेल्यूलोज है ही नहीं, तो फ्लैश ही तो है, हमारे में सेल्यूलोज है नहीं, तो ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा होता है। इसलिए डियर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड, ये इसी के कारण ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ पर डिफरेंस होता है। आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो जाइलम और फ्लोएम तो हम सबने पढ़ा है। 41। तो फ्लोएम ट्यूब्स में क्या होता है? सबसे देखो सीव ट्यूब्स होता है, कंपाइनेशन सेल्स होता है, बस यही तो है इसमें। कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 times मैग्नीफाइड इमेज of an object. If the height can be taken, which can be taken on screen, if the focal length is 30 centimeter, then the distance of the object from the lens. तो देखो फोकस कितना है 30 सेंटीमीटर का। अब जो ऑब्जेक्ट बना ना, वो हो गया 3 times, यानी कि मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होता है -v/u इक्वल्स टू 3, यानी कि v इक्वल्स टू -3u। ठीक है, अब अगर v इक्वल्स टू -3u हो गया, तो अब यहाँ पे करना क्या है? सीधा लेंस फॉर्मूला लगाना हमें, तो 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये लगा देंगे हम। तो v कितना है 1/-3u, और ये -1/u तो ऐसे ही रहे, और ये हो गया 1/30। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग क्या कहते हैं, इसका आंसर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। कैसे होगा ये देखो, अब जब इसे एलसीएम लोगे तो -4/3u इक्वल टू 1/30, तो 3 और 3 कट गया, हो जाएगा 10, तो u इक्वल्स टू -1 -4 इंटू 10, यानी कि -40। तो u कितना हो गया -4 इंटू 10 -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन चलो थोड़ा सा अच्छा लेवल का, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, थोड़ा आसान ही था। ये थोड़ा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये। अब देखो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है सी पे, अब इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? सबसे पहले क्या है, कनकेव मिरर है या नहीं? तो देखो कनकेव मिरर में इमेज हमेशा रियल बनेगा, ये ऑप्शन ये वाला तो सही है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, नहीं, जब इमेज बनेगा कनकेव मिरर तो वो डिमिनिश्ड बनता है, याद है हमने पढ़ा था डिमिनिश्ड बनता है 10th में आप लोग पढ़ते, तो ये वाला गलत है। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सिर्फ बी वाला जो है ये सही नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, अब हम लोग 41 बोल रहा हूं 45 पे। अब देखो ये वापस से भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने लग गया ये। अब हमें क्या देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करना है। तो देखो N1 N2
N3, 3 मीडियम है हमारे पास। तो देखो सबसे जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख के कह सकते हो कि जो N3 है ना वो N1 से बड़ा होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे इतना बड़ा एंगल बन रहा है, यहाँ देखो छोटा सा एंगल बन रहा है, तो N3 जो है वो जाहिर सी बात है N1 से बड़ा होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उतना कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब देखो इसमें क्या क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है एयर में कितना होता है। देख लो जरा, एयर में जो है स्पीड ऑफ लाइट इसने दे रखी है 3 × 10⁻⁸। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर। मीडियम इसने पहले डाला 1.5 में, फिर किस में डाला इसने 1.33 में। तो देखो अब हमें वेलोसिटी निकालनी दोनों में। वेलोसिटी को कैसे होता है, v = c/n। n क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्पीड ऑफ लाइट एयर इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। c और n है ये हमारे पास, निकाल दो। तो देखो पहले में क्या है, v1 की बात करते हैं तो 3 × 10⁸ 8/1.5, तो क्या हो गया 2 × 10⁸। पहला हो गया 200, यानी कि देखो पहले में 2 × 10⁸ किस में है, इसमें है ए में और सी में, डी में है, तो यानी कि बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो बी और सी को तो एलिमिनेट कर दो। अब बचा क्या ऑप्शन, अब हमें ये देखना है, ये और ये देखना है हमें। ठीक है, जरा देखते हैं इसे भी। V2 कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ 8/1.33। अब देखो 1.33 को क्या मैं 4/3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो V2 कितना हो गया 3 × 10⁸/4/3, यानी कि ये 3 आ जाएगा ऊपर, 9/4 × 10⁸, यानी कि 2.25 × 10⁸, यानी कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी मेरा सही होगा इसका। 46 हो गया, 47 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो 47 क्या कह रहा है, an object of height 4 cm is kept at a distance 30 cm from the pole of a diverging mirror। डाइवर्जिंग मिरर यानी कि सबसे पहली बात क्या समझ लो, डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कन्वेक्स, ये है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कहां रखा गया है, 4 सेंटीमीटर का हाइट है, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया, 10 सेंट, और फोकल लेंथ कितना है, एफ कितना है 10 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस कितना है u -30। ठीक है, अब हमारे पास हाइट कितना ऑब्जेक्ट का 4 है, हमें क्या निकालना है h डैश निकालना है ना हमें। तो सिंपल, सबसे पहले v निकाल लो, तो 1/v + 1/u = 1/f होता है मिरर फॉर्मूला लगा के। तो 1/v - 1/30, माइनस क्यों होंगे क्योंकि u कितना होता है, हमेशा नेगेटिव होता है नहीं, u -30, और f कितना है कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/10। तो 1/u = 1/10 + 1/30, यानी कि v = 30/4। जब v मिल गया हमें, तब देखो वाला मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला लगा, तो v/u = h'/h, ये लगा दो फॉर्मूला इसमें, तो क्या हो जाएगा, अब देखो v कितना है 30/4, u कितना है 30/4/30 इक्वल टू कितना हो गया h' कितना है 4, तो 30 और 30 कट गया, यानी कि 1/4 = h'/4। यहां से 4 और 4 कट गया, तो h' कितना हो गया 1, यानी अब देखो 1 कौन सा है, ये ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। 47 का सी ऑप्शन जो है सही है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ठीक है,
अब देखो 50 ml of water was taken in a beaker. Hydrochloric acid was added to it drop by drop. यानी कि हमने पहले पानी लिया, उसमें हमने HCl डाल दिया. The temperature and pH was noted. अब एक ग्राफ बनाया गया टेम्परेचर और pH को नोट में लेते हुए. तो देखो क्या होता है, जब हम लोग एसिड में पानी में जब हम लोग एसिड डालते हैं ना, तो वो एसिड जो है वो H+ आयंस रिलीज करता है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ आयंस रिलीज करेगा, जो कि क्या करेगा, H+ आयन जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, जब H+ आयन टेम्परेचर को हीट को रिलीज करेगा तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा. ठीक है, तो जब वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया तो ये तो ऑप्शन तो गलत हो गया ना, क्योंकि जब हीट रिलीज हो रही है, जब हम लोग पानी में एसिड डालते हैं तो हीट रिलीज होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक. तो एंडोथर्मिक तो रहा नहीं, ये ऑप्शन हो गया गलत. अब pH, जब देखो जब पानी में हम लोग एसिड डालते हैं, एसिड क्या करता है, pH को कम कर देता है. तो pH तो इंक्रीज करेगा नहीं, करेगा क्या, नहीं ना, pH इंक्रीज करेगा नहीं, तो ये भी हो गया गलत. pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, जैसे मैंने एसिड डिक्रीज करेगा. और नॉर्मल पानी का pH कितना होता है, 7 होता है, बिल्कुल. तो तीसरा और चौथा सही, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही है. आगे बढ़ते हैं अब सेक्शन सी पे. बस अब हमारा पेपर होने वाला खत्म. हमने कर लिए टोटल 48 क्वेश्चंस, अब 49. अब हमारे पास बच्चे से 12 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ये भी हम लोग फटाफट खत्म ही कर लेंगे, ताकि अब आप लोग अपने मिस्टेक्स को, अगर आपने कहीं किए होंगे, होपफुली आपने किए नहीं होंगे. आउट ऑफ द गिवन मेटल्स, जरा पहले पढ़ लिए, पैसेज बेस्ड है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है. हाँ, अब देखो, जरा देखो इसके बारे में. ऑल मेटल्स कैन नॉट बी कट बाय नाइफ एक्सेप्ट आर. अब देखो एक स्टूडेंट ने ना मेटल्स लिए PQRS. अब उसने क्या किया, सारे मेटल्स को नाइफ से नहीं कट कर पाया सिवाय आर के. यानी कि आर क्या हो गया, सिंपल सोडियम, क्योंकि सोडियम को तो हम लोग चाकू से काट सकते, सॉफ्ट होता है. मेटल P combined with oxygen to form M2O3 is reacted with both acids and bases. अब P जो है वो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि वो एम्फोटेरिक है. अब P2O3 क्या हो गया, एम्फोटेरिक, यानी कि एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम तो देता है Al2O3, तो P क्या हो गया, एल्यूमिनियम. ठीक है, P did not react either with cold water, यानी ये तो हमें P मिला. देखो हमें फोकस किस पे करना, Q और S पे. Q reacted with hot water and the metal started floating. ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जब हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं ना, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है. अब S रिएक्ट ही नहीं करेगा, हमें S के बारे में कुछ ज्यादा गिवन नहीं है. तो अब हम लोग आते हैं जरा क्वेश्चंस पे. तो यहाँ पे आप नोट कर लो, P एल्यूमिनियम, Q मैग्नीशियम, R सोडियम, S हमें ढूंढना है. तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा होगा, इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसे हमें केरोसिन में करना पड़ेगा स्टोर. तो केरोसिन में किसको स्टोर करते हैं, सोडियम को. सोडियम कौन सा था, जरा आते हैं वापस हम लोग. सोडियम कौन सा था, जरा देखो इधर, सोडियम था R, यानी कि 49 का ऑप्शन क्या हो गया, B. विच ऑफ द मेटल Q, Q कौन सा मेटल है, क्यों मैंने बताया, मैग्नीशियम, क्योंकि वो फ्लोट करेगा. एम्फोटेरिक कौन सा बनाएगा, मैंने फिर बताया था, P एम्फोटेरिक बनाएगा, क्योंकि P एल्यूमिनियम है. रिएक्टिविटी ऑर्डर बतानी है हमें. तो रिएक्टिव देखो, Na सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि जो है N का है, N क्या है इसमें, R सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा. उसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम है Q, यानी कि R के बाद क्या आएगा, Q. अब R के बाद Q देखो, अब देखो R के बाद Q, R के पहले Q किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है ना. यहां से ऐसे एलिमिनेट कर दो, देखो इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा. एलिमिनेट करोगे अपने आप आपको आंसर मिल गया, ये रहा आंसर 52 का, C हो गया. ऐसे हमने ये पैसेज भी फटाफट से सॉल्व कर लिया है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पैसेज 2 पे. ठीक है,
ये देखो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है डायलिसिस का, हर बार पेपर में पूछा गया है। 10th में जब हम लोग भी पढ़ते थे तो भी पूछा गया था। एक ना एक सवाल आता है इसमें, हर साल डायलिसिस पे एक सवाल आता ही है। देखो जरा क्या कह रही है, फिगर शो द कॉमन टाइप ऑफ डायलिसिस कॉल्ड हेमोडायलिसिस। डायलिसिस पे सवाल है ये, ठीक है। अब डायलिसिस का फंक्शन हमें पता है क्या होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर, जिसका किडनी काम नहीं करता उसके लिए यूज होता है। वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना, फ्रेश अंदर देना उसे, ब्लड को बेसिकली वो ब्लड को क्या करता है, प्योरीफाई करता है हमारे बॉडी में, है या नहीं। तो पहला बार पढ़ते हैं, हेमोडायलाइजर है सेमी परमिएबल लाइनिंग विच हेल्प्स टू। अब हेमोडायलाइजर जो होता है ना, उसमें सेमी परमिएबल लाइनिंग क्यों होती है, ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को पास कर पाए। तभी तो वेस्ट प्रोडक्ट जब वो पास होगा तभी तो वो ब्लड प्योरीफाई होगा। जब वेस्ट प्रोडक्ट पास नहीं है तो ब्लड प्योरीफाई कैसे होगा हमारा। तो 53 का तो सी हो गया। आगे बढ़ते हैं और 54 पे आते हैं। अब आर्टिफिशियल किडनी का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो सोचो, आर्टिफिशियल किडनी का कौन सा फंक्शन नहीं है। टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये इसका फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये एक्सेस फ्लूइड रिमूव करता है हेमोडायलिसिस में, रीअब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, लेकिन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ना नहीं निकाल सकता। द यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन इज रिच इन। अब जो डायलाइजिंग सोल्यूशन जो उससे हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारे ब्लड प्योरीफाई होता है, वो किस चीज में रिच होता है, जरा सोचो। वो रिच होता है 55 का हो जाएगा यूरिया नेक्स्ट, यानी कि जो यूज हो गया, यानी कि जैसे हमने बॉडी में हमने डायलाइज किया तो निकल के जो निकला बाहर जो सॉल्यूशन निकला, जो हमारे बॉडी से बाहर निकला, वो किस चीज में रिच हो जाएगा, यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स में। क्योंकि हमारी बॉडी क्या रिलीज करेगी, सॉल्ट और यूरिया, तो उससे रिलीज करना है, समझ गए। अब आगे देखते हैं, पे आते हैं हम लोग। Which part of the nephron in human kidney serves as a function of reabsorption? अब ह्यूमन बॉडी में आपने पढ़ा था नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रीअब्जॉर्प्शन में काम करता है। बहुत ही सिंपल, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ग्लोमेरुलस, और कोई काम ही नहीं करता, मांगिए तो अपने फंक्शन, सॉरी ग्लोमेरुलस नहीं, वो गलत मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसका होगा ट्यूब्यूल्स। हाँ ट्यूब्यूल्स, वो मैंने ऑप्शन गलत सिलेक्ट कर दिया, ऑप्शन सी है इसका ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन भी इसका स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया गया है जिसकी दो लेंसेज है L1 और दूसरी लेंसेज की क्या है L2। इसमें क्या बना, रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज बन रहा है। ठीक है, दिस सर्व्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर L2। L2 पे जो है, L1 को हमने कहा ऑब्जेक्टिव, L2 को कहा आईपीस। आईपीस फंक्शन है सिंपल माइक्रोस्कोप, और L2 का मेन काम क्या है, मैग्नीफाई करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, बढ़ाना। अब जो L2 देखो, L1 कैसा इमेज बना रहा है, L1 की बात करते हैं तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, और L2 कैसा बना रहा है, जो कि है ओरिजिनल, एनलार्ज, ओरिजिनल से ऑब्जेक्ट से बड़ा और वर्चुअल है। अब देखो L1 और L2 कैसा लेंस होगा, जरा सोचो और बताओ। दोनों ज्यादा कॉन्वेक्स होगा, बोथ लेंस कॉन्वेक्स, क्योंकि माइक्रोस्कोप में ना हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्योंकि वो उसे साइज को बढ़ा देता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है साइज को बढ़ा देता है, तो माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे हम लोग। अब देखो 58, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन सिस्टम। ओके, L1 के अकॉर्डिंग, कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग L1 पे जो वो बनेगा उसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा। तो देखो सबसे पहले देखो इन्वर्टेड इमेज बनता है ना L1 पे, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, रियल तो है ही लेकिन क्या है साथ साथ इन्वर्टेड है। तो 58 का जो है ना, इन्वर्टेड होने के कारण साइन तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि इन्वर्टेड है, वाई एक्सिस के नीचे आ गया इन्वर्टेड, लेकिन वैल्यू जो है वो मोर देन बनेगी। एक्स एक्सिस देखो, अगर इन्वर्टेड इमेज बनता है तो अगर ऐसे है तो एक
यहाँ बनेगा इन्वर्टेड, अगर बीच में एक लेंस डाल दोगे आप तो ऐसे बनेगा। तो देखो एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिव में पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस रेस्पेक्टिव में ये नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू तो 1 से बड़ा होगा क्योंकि साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के साइज से ये साइज बड़ा होता है, और वाई एक्सिस में नेगेटिव है तो उसका साइन नेगेटिव लग जाता है। बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। अब ये तो बात होगी L1 की, अब L2 के साइंस क्या होंगे? L1 के तो साइंस हमें मिल गए, अब L2 का साइन क्या होगा? ठीक है, L2 में क्या होगा? इसमें देखो L2 भी क्या कर रहा है, देखो L2 पे भी हमने पढ़ा था वो एनलार्ज कर रहा है, बड़ा करे तो वैल्यू तो मोर देन 1 होगा, ठीक है, और साइन भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि L2 जो है वो वर्चुअल बनाता है, हमने पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो L2 जो है वो वर्चुअल बना रहा है, इसलिए उसका साइन भी पॉजिटिव, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब आखिरी क्वेश्चन की बात है 60। अगर L2 की वैल्यू 5 डायोप्टर्स है, 5D, इमेज को कौन से डिस्टेंस पे रखा जाए ऑप्टिकल सेंटर से? 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो उसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा अगर इमेज यहां से बना? अगर 5D उसका क्या कहते हैं, उसका वो हो गया पावर, तो 1/5 इसका हो जाएगा फोकल लेंथ मीटर में, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 100/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका फोकल लेंथ। तो अब लगा दो मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v गिवन है हमारे पास 80, f मिल गया 20, तो 1/20 इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/u। सॉल्व करने पे हमें इसका आंसर मिलेगा 16 सेंटीमीटर, ये आंसर इसका सही है। तो इसी के साथ साथ हमारा सॉल्यूशंस खत्म होता है। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, सारे के सॉल्यूशंस निकाले, और जहां तक मैं समझता हूँ क्वेश्चन पेपर बहुत टफ नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, बहुत ज्यादा आसान, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अगर कोई बच्चा दो या एक हफ्ते पहले भी पढ़ना स्टार्ट करे वो कर देगा। मॉडरेट लेवल था, हाँ कुछ क्वेश्चन थे जैसे ऑप्टिक्स के अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। तो ओवरऑल इसमें अच्छा, अगर आपको गुड स्कोर करना है तो अगर 40 मार्क्स का पेपर है तो कोई भी अगर नॉर्मल अगर पढ़ने वाला बच्चा तो वो 40 में से 40 लेगा, नॉर्मल एवरेज बच्चा तो 30 से प्लस ला सकता है आराम से। तो थैंक यू फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, हमारे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, और फिजिक्स के रिलेटेड अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप साइंस के किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू सो मच।